Hello students, this is the lecture of plus 2 accountancy, and today there is one question which you have to solve, and I will give you hints how to solve this question. And till that, side by side, take your notebooks and pen also, and along with that try to solve this question, right? So the question is saying X, Y, Z are partners and having capital of 1,50,000, 1,20,000 and 1 lakh, right? And the current account balance of X, Y and Z is 8,000 credit balance, 3,000 credit balance and 2,000 debit balance. Now the third point, they are saying X have given a loan, that is X advance 20,000. X have provided loan to the firm of 20,000 amount, and the date was 1st of October 2015 till 31st March. We have to solve that. And they are saying deed provide interest on capital 5%. So we have to provide interest on capital here 5% and interest on drawings 6%, as this is mentioned that each partner X, Y and Z they withdraw 10,000 on 1st October 2015. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज 20,000 अमाउंट जो है दैट इज़ ट्रांसफ़र टू द रिज़र्व अकाउंट. जितनी भी अमाउंट बचेगी उसमें से 20,000 वी हैव टू ट्रांसफ़र टू रिज़र्व अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो उनकी है 3:2:1. सो इट विल बी 3:1, दैट इज़ 3 + 2 5 + 1 6, 3/6, 2/6 and 1/6, right? So this will be the ratio. And now they are saying profit and loss उन्होंने they have to share profit and loss up to 60,000 in the ratio of 3:2:1. This is the new point which I want to discuss with you, so please listen carefully. They are saying whatever the profit amount will be, from that profit amount up to 60,000 amount should be shared in 3:2:1 ratio, and rest of the amount will be shared equally. ठीक है. Above 60,000 amount which will be the balance amount, that should be shared equally, right? For example, there I can say there is the profit of 1 lakh, right? कि 1 lakh का profit था. Now the condition in the question is mentioned. They are saying X, Y, Z have to share from this much profit. इसमें से 60,000 तक का बैलेंस दे नीड टू शेयर इन 3:2:1. जितना भी प्रॉफिट होगा, सपोज प्रॉफिट हमारा 1 लाख हुआ, द प्रॉफिट अमाउंट इज़ 1 लाख, एंड फ्रॉम 1 लाख उन्होंने दे हैव गिवन इन क्वेश्चन that whatever the profit amount will be, from that amount up to 60,000 amount should be shared in 3:2:1 ratio between X, Y and Z, right? X, Y, Z में 1 लाख में से 60,000 अमाउंट 3:2:1 की रेशो में शेयर हो जानी है, एंड द रेस्ट वन अमाउंट कितनी बची 40,000, दैट वुड बी शेयर equally. That is 40,000 will be distributed among X, Y, Z in the proportion of 1:1:1. That is 1/3, 1/3 and 1/3, right? So this was the important point which I need that आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में, because बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ था क्वेश्चन. So after that they are saying नेट प्रॉफिट इज़ गिवन बिफोर एनी एडजस्टमेंट. इतना नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, इट्स 1,15,400, एंड यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, राइट? So these 3 accounts we have to prepare, and they have given the balance of current account here. ये आपको ध्यान में रखना है. 2 credit balance and 1 is debit balance, right? So बिफोर स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में यू हैव टू प्रिपेयर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना. तो ये वर्किंग नोट मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए पहले ही बना के रखा है. देखिए कैसे, लाइक दैट they have provided that interest on capital will be 5%, interest on drawings will be 6%, or X advance 20,000 लोन ऑन 1st October 2015. ये तीनों चीज़ें इन ऑन वर्किंग नोट आपको ऐसे लिख लेनी है. फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ लेट अस सी कि कैपिटल अमाउंट कितनी है.
The capital is 1,50,000, 1,20,000 and 1 lakh, right? So interest on capital will be 1,50,000 multiply 5 by 100 because interest on capital's percentage was 5%. So ये आपको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेना है, राइट? आफ्टर दैट बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 1,20,000 इंटू 5/100 तो हमें करना ही पड़ेगा. सी की कैपिटल 1 लाख और इस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है 5%. तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट वन का आ गया 7,500, 6,000, 5,000. You have to calculate that by your own. Okay, after that interest on drawings. Now they are saying each partner is withdrawing 10,000 on 1st October 2015. That means the partner is withdrawing 10,000 on 1st October, from 1st October to 31st March. It comes October, November, December, Jan, Feb, March. Okay, 6 months, right? For 6 months we have to calculate the interest on drawings. That means the amount of drawings into 6/12. For 6 months we have to calculate that into, the amount is 6%. So 6/100 we have to apply, and the amount will be 300. Same as, because 3 of the partners have withdrawn the equal amount 10,000 and the time period is also same. So 300, 300 and 300 will be the interest on drawings amount. Now talking about interest on loan, they have mentioned in the question that interest on loan is 20,000 and it is provided by X to the firm only on 1st October 2015. So we have to mention here interest on loan is on 1st October, ठीक है, is 20,000. That means it will be provided for the 6% or 6 months के लिए, that is 600. I hope calculation is clear to you all, because we have calculated this many times. Okay, so here P&L appropriation account. So we have to do the entries. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे प्रॉफिट को उतारना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमारे पास? देयर नेट प्रॉफिट इज 1,15,400, राइट? सो देयर वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब कितना है हमारा? 1,15,400. नाउ यू विल से दैट व्हाई आई हैव रिटन दिस प्रॉफिट अमाउंट हेयर, व्हाई नॉट हेयर, राइट? कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, यहाँ क्यों नहीं लिखी? द रीज़न इज़ यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया था. अब ये एंट्री हमें P&L अकाउंट में करनी थी, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग दैट. सो हम यहाँ पे इसी में से डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट हम यहाँ पे ले लेंगे. तो यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. कितना आया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स पे? दैट इज़ 600, राइट? सो फ्रॉम 1,15,400 में से हमने 600 रिड्यूस किया, तो हमारा बैलेंस आ गया दिस मच. ओके, आफ्टर दिस अब हमें पता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे. नाउ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे हमने सारी अपनी पेमेंट्स लिखनी है जो हम पार्टनर्स को कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन विल बी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y एंड Z. बिकॉज यहाँ पे करंट अकाउंट हमारा साथ में बन रहा है, तो हम इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू X करंट अकाउंट, Y's करंट अकाउंट एंड Z's करंट अकाउंट, राइट? The balance will be 7,500 first one, 6,000 or 5,000. 7,500, 6,000 and 5,000. Okay. Next one, they said that we have to transfer 20,000 to the reserve account. So यहाँ पे हम कुछ पोर्शन अपना ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट का रिजर्व्स में. तो we will write to रिजर्व अकाउंट. कितना अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करना है? वी हैव टू ट्रांसफ़र 20,000 फ्रॉम दिस मच पोर्शन. ओके, नेक्स्ट वन वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बिकॉज दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपनी फर्म ओनली. सो वी विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सेम ईयर एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट
जेड्स करंट अकाउंट, सेम अमाउंट 300, 300 एंड 300। आपको ये सारी अमाउंट्स यहाँ पे लिखनी है और यहाँ टोटल करना है। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग स्पेस। आपको ध्यान रखना है कि ये सारी अमाउंट आपने यहाँ पे इस साइड कॉलम के बाहर रख के तो यहाँ कॉलम में टोटल कर देना आपने। यू नो दैट राइट, यू हैव लर्नड इन +1 अकाउंटेंसी क्लास। सो आफ्टर राइटिंग दिस, हमने क्वेश्चन में देखिए सारा कुछ उतार लिया। हमने P&L का बैलेंस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने डिडक्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने यहाँ पे लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना था वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, रिज़र्व में से इतना प्रोपोर्शन हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अभी कुछ रह गया? नथिंग, राइट। तो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट का पोर्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स करंट अकाउंट, वाईज करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट। तो आपने यहाँ पे पूरा करंट अकाउंट मेंशन करना है एंड दिस यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। और मुझे वीडियो देख के आपने आंसर सेंड करना है दैट दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैम, ये हमारा प्रॉफिट निकला। ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू दैट बाय योर ओन। और मुझे बताओ XYZ के करंट अकाउंट में कितना बैलेंस आया, राइट। After that, what you have to do, you have to prepare capital account and you have to prepare current account. अब आपको पता है कि कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, राइट। आपने पहले किया हुआ है कि कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और उसको कहाँ से कैसे कैसे ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट्स। हमें पता है कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ कैपिटल का बैलेंस इस साइड पे ब्रॉट डाउन करना है, राइट। तो आप कैपिटल अकाउंट में इस साइड XYZ का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बाकी बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन करोगे। उसके बाद आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में करनी है। अब करंट अकाउंट में आप ट्रांजैक्शंस कैसे करोगे? करंट अकाउंट को बना के आपने सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है जो यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करंट अकाउंट बना रही हूँ, राइट। ये मैंने करंट अकाउंट बनाया 3 पार्टनर्स का और यहाँ पे मैंने 3 पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया। ये हो गया X, Y एंड Z। दिस इज़ X, Y एंड Z। मैं रफ फॉर्मेट बना रही हूँ बेटा, आपको खुद करना है, ये आपका काम है, ये आपकी होमवर्क है। आपको ये खुद से ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है। व्हाट यू हैव टू डू बेटा, XYZ की अमाउंट को आपने यहाँ पे देखना है। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 8000, 3000 एंड 2000। 2 क्रेडिट बैलेंस है, 1 डेबिट बैलेंस है। ओके, क्रेडिट बैलेंस से हम यहाँ पे X का ले लेंगे बैलेंस 8000 और Y का बैलेंस 3000 एंड Z इज़ हैविंग डेबिट बैलेंस। तो Z का यहाँ पे डेबिट बैलेंस 2000 लिखना है हमने यहाँ पे, राइट। इसको लिखने के बाद बाकी जो जो एंट्रीज़ हमने ट्रांसफ़र की हुई हैं यहाँ पे वो सारी एंट्रीज़ हमने दूसरी साइड लेके जानी है। अब देखिए जो हमने डेबिट साइड XYZ की करंट अकाउंट की एंट्रीज़ की हैं वो हम क्रेडिट साइड XYZ की करंट अकाउंट में एंट्रीज़ कर देंगे। जो हमने क्रेडिट साइड XYZ की करंट अकाउंट की एंट्रीज़ की हैं वो हमने डेबिट साइड एंट्री कर देनी। उल्टा चलना है, यहाँ वाली सारी एंट्री इस साइड आ जाएंगी, यहाँ वाली सारी एंट्रीज़ इस साइड आ जाएंगी। यहाँ पे देखना है कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज़ हुई पड़ी हैं, ठीक है। और उन एंट्रीज़ को हमने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की है, हमने यहाँ पे ड्राइंग्स की एंट्री की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री की है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा बैलेंस आया है, हमने उसकी एंट्री की हुई है सारी। ये सारी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। कैसे कैसे? ऑपोजिट साइड। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना इतना बैलेंस आ गया हमारा। इसके बाद हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड क्यों लिखा, डेबिट साइड क्यों नहीं लिखा? दिस इज़ द रीज़न। यहाँ पे देखिए, या लाइक दैट। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ था हमारा? देयर ऑन डेबिट साइड। अब P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमारे XYZ के करंट अकाउंट खुले हुए हैं। अब इन करंट अकाउंट को ऑपोजिट साइड इस तरफ क्रेडिट साइड पे हमने ले जाना है। X के करंट अकाउंट में बैलेंस, Y के करंट अकाउंट में बैलेंस और Z के करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से XYZ को यहाँ पे उतार देना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे XYZ का बैलेंस है,
ऑपोजिट साइड इधर उतार लो, XYZ का बैलेंस इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स के साथ। यहाँ पे प्रॉफिट्स का हमारा बैलेंस आया हुआ है, इस साइड उतार लो प्रॉफिट्स। अगर लॉस आए होते तो इस साइड उतार लेने थे। ड्राइंग्स की अमाउंट हमें पता है, हम इस साइड ही लिखते हैं कितनी कितनी ड्राइंग्स पार्टनर्स ने करवाई हैं। अब बेटा ये आपका काम है, इन सबको लिखने के बाद आपने टोटल करके मुझे बताना है कि मैम इतना इतना बैलेंस आ गया, राइट। अब होमवर्क अपना फटाफट फिनिश करके आप मुझे सेंड करोगे होमवर्क। क्वेश्चन की डिटेल आप देख लीजिए एक बार, फिर स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है पॉज करने की तो, राइट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो यू हैव टू डू नाउ वट, देखो, फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर P&L appropriation account, आफ्टर दैट प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन करंट अकाउंट। दिस वाज द पॉइंट विच आई नीड टू डिस्कस विद यू। ये पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। यहाँ जितना भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट्स मतलब जितना भी बैलेंस बचेगा प्रॉफिट के लिए, उस प्रॉफिट में से फर्स्ट 60,000 अमाउंट को आपने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो इक्वली बांटनी है। तो ये आप वर्किंग नोट में करोगे। यहाँ पे XYZ का कॉलम बना लोगे 3 अलग अलग। जितना भी प्रॉफिट आएगा, जैसे मैंने 1 लाख की एग्जांपल देके आपको प्रॉफिट की बताई थी, सेम एज आपने प्रॉफिट का बैलेंस लेके फर्स्ट 60,000 उस बैलेंस में से निकाल के 60,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2:1 की रेशो में। वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास जो बैलेंस बच जाएगा, मान लो यहाँ पे 100 था अमाउंट, हमारी यहाँ पे आई बैलेंस 100 प्रॉफिट का। 100 बैलेंस में से मैंने पहले 60 बैलेंस को इन तीनों में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। बचा 40 का बैलेंस मैंने यहाँ पे इन तीनों में 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है कि मेरा कितना बैलेंस बचता है, कितना प्रॉफिट आया। वो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर नहीं पता चलेगा यू कैन आस्क मी अगेन। सो दिस इज़ योर होमवर्क असाइनमेंट भी, और आपका काम है ये आपको करके अभी के अभी फिनिश कीजिए, और आज रात को 8 o'clock तक आप मुझे सेंड कर दो ये वर्क अपना, ओके। I hope this is understandable to you. If any query, then please ask me in group. All right. Thank you so much.